This lecture is about the fundamental types of lattices. First, we will see how many types are there in a two-dimensional lattice, and then we will move forward to our three-dimensional lattice space. So first of all, let's see कि हमारे पास जो 2D Bravais lattices हैं इसमें कितने किस्म के crystals मौजूद हैं. We all know that in case of 2D we have x-axis and y-axis. तो इस केस में हम यूँ सपोज करते हैं कि x इस साइड पे होगा और y-axis इसका अपवर्ड है. यहाँ पे वन स्पेशल और 4 जनरल टाइप की क्रिस्टल्स हैं. Okay, one is oblique, the second is square, the third one is rectangular and centered rectangular lattice, and the last one is hexagonal structure. First of all, look at this first oblique lattice. Oblique lattice के केस में जो parameters हैं, these alpha and A and B हैं. A is are along x-axis, B of course must lie in depending on the structure, it will either lie on the y-axis or it includes both x and y-axis. तो इस केस में अगर हम देखें A और B दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं और एंगल जो अल्फा है that's not 90 degree in case of oblique lattice, while in case of square lattice these parameters are A and B both are equal to each other and the angle is 90 degree. Angle between these A and B parameters. And for a rectangular lattice, these two parameters are not equal to each other. The angle is 90 degree again. And similarly, for the centered rectangular lattice, the angle is 90 degree between these two parameter A and B vectors, while these both are not equal to each other. Apart from these characteristics, it has one lattice point enclosed by this rectangular lattice. That's why it's actually a centered rectangular lattice. What about hexagonal? In case of hexagonal, we have this structure which has 6 faces, and each angle, these 6 angles, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, these 6 angles are equal, and these angles are each of 120 degree, and these parameters A1 and A2 both include x and y, both axes. Okay, let's see कि हम हमारे पास ये 120 डिग्री ही क्यों है. I mean 120 डिग्री कैसे आया है. अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं जैसा कि ये है, या आपके पास ये 3 टाइप्स की क्रिस्टल पहले मौजूद है, तो इनकी साइड लेंथ जो है वो 4 है और इनके दरमियान का एंगल इन तीनों का तो 90 डिग्री है. इसका हमने ये कहा कि वो 90 नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि किसी तरीके से हम इनका इंटरनल टोटल एंगल कैलकुलेट कर सकें इन अप्लाइंग सम फॉर्मूला. टोटल एंगल लेट्स से मैं उसको थीटा टी के साथ डिनोट कर देता हूँ. थीटा टी इज इक्वल टू n minus 2 into 180. n minus 2 into 180. Okay, n minus 2 into 180, where n is number of sides. Number of sides जैसा कि इसके केस में 1, 2, 3 and 4 है और इसके केस में 1, 2, 3, 4, 5 and 6 हैं. लेट्स फर्स्ट सी के बिल्कुल सिंपल से केस में जैसा कि इस केस में है. लेट्स से इसमें जैसे कि 4 आपके पास साइड लेंथ हैं, सो वहाँ हम 4 प्लग करके देखते हैं. इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 तो यहाँ पे 2 I mean 4 minus 2, of course 2 multiplied by 2, then this theta t will be of course 2 times of 180 degree which is 360. So ये 360 है और क्योंकि हर एंगल इस केस में बराबर है तो हर एंगल के केस को अगर आप जस्ट अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा मस्ट बी दिस थीटा टी डिवाइडेड बाय योर टोटल एंगल्स.
हाउ मैनी नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर, सो वी हैव 4 एंगल्स, तो हर एक का जो एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा। इसी तरह अगर हम इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के केस में थीटा टी यानी कि टोटल इंटरनल एंगल विल बी 6 साइड्स हैं इसकी 6 minus 2, then we have 4 times of 180 degree, 4 times of 180 is 720, so we have total angle 720 degree। अब क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एंगल्स हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, सो इसको अगर मैं थीटा टी को 6 पे डिवाइड करता हूँ देन ईच एंगल यानी अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री। सो हर एंगल की जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं वो 120 डिग्री है। In case of hexagonal structure, the specifications are कि theta is 120 degree and each side length are equal to each other. Okay, let's move to our three-dimensional Brovais lattice. Three-dimensional के केस में भी हम अपनी limitation first of all एक general सी structure बना लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ parameters जो हैं, lattice parameters हैं, वो A, B और C हैं। A is along our x-axis and B is along our y axis और C जो है वो z axis के along है, और जो यहाँ पे angles हैं these are alpha, beta and gamma, 3 angles हैं। इस केस में हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल्स हैं। एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, दूसरा टेट्रागोनल है, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक है, चौथा rhombohedral and hexagonal, monoclinic and triclinic crystal systems। इन सारी क्रिस्टल को हम इंडिविजुअली तौर पर देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल के केस में आए तो क्यूबिक क्रिस्टल के केस में हमें पता है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और जो ए बी एंड सी हैं दीज लेटेस्ट पैरामीटर्स आर equal to each other, right? Again इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के क्रिस्टल्स मौजूद हैं सिंपल क्यूबिक में, जो कि हम प्रीवियसली देख भी चुके हैं कि एक सिंपल क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर्ड है और एक फेस सेंटर्ड है। डिनोट करने के लिए हम फर्स्ट के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए P लेटर यूज़ करते हैं एंड बॉडी सेंटर I एंड फेस सेंटर्ड फॉर F। सो हियर यू हैव अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके हर जो साइड लेंथ है वो इक्वल है, और इस केस में हर एज पे एक लेटेस पॉइंट मौजूद है और लेटेस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ऑफ ईच है। सो इसमें टोटल ओवरऑल जो लेटेस पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटेस पॉइंट्स हैं, दैट इज गिवन बाय 1। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड वी नो इसकी जो सिमिलरिटी है वो सिंपल क्यूबिक के साथ ही है, मगर एक एक्स्ट्रा लेटेस्ट पॉइंट इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। अल्फा बीटा गामा एंड दीज ए बी सी ऑल द पैरामीटर्स आर क्वाइट सिमिलर एज आई मीन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सिंपल क्यूबिक, तो वो चीज़ तो वैसे ही सेम रहेगी इस केस में। फेस सेंटर्ड के केस में हर फेस पे, यानी अगर आप फ्रंट फेस इसको देखते हैं तो इसके सेंटर में एक एटम यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस बैक साइड के फेस को देखते हैं तो इस बैक साइड के फेस में बिल्कुल एक सेंटर पे एटम मौजूद है। योर फ्रंट साइड फेस दिस वन हैज़ 1 एक्स्ट्रा एटम एंड अपर एंड लोअर सिमिलरली हैज़ 1 एक्स्ट्रा एटम। तो इस केस में अगर आपको लेटेस्ट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हो तो 1/8 कंट्रीब्यूशन हर कॉर्नर एटम की है और 1/2 कंट्रीब्यूशन इस फेस सेंटर की है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो या लेटेस्ट पॉइंट्स जो इसमें 4 बन जाएंगे, 3 फेसेस की वजह से आएंगे और एक इसके इस एज की वजह से आएगा। इसी तरह अगर हम इस सेकंड टाइप यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दीज आर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ए बी और सी पैरामीटर्स में से
ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं जबकि सी उनके इक्वल नहीं है। हाँ, एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर स्टिल 90 डिग्री। अगेन फिर इसमें दो टाइप्स की फर्दर क्रिस्टल है, एक सिंपल टेट्रागोनल है और एक बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है। फर्स्ट वन इज सिंपल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। उसमें ऑफ कोर्स ए और बी सेम है तो उसको हमने जस्ट ए से डिनोट किया हुआ है और सी पैरामीटर इनसे डिफरेंट है। इट कुड बी अ स्मॉलर और लार्जर, इट्स नॉट स्पेसिफाइड हियर। तो अल्फ़ा बीटा एंड गैमा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उस केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आइटम मौजूद है इसके सेंटर में, यानी सिंपल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के सेंटर में अगर एक आइटम मौजूद है तो वो बॉडी सेंटर्ड है। सिमिलर टू आर प्रीवियस केस, जैसे इस केस में सिंपल क्यूबिक के केस में अगर सेंटर में एक मौजूद था तो वो बॉडी सेंटर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी और इसकी मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनमें सी जो है वो इस केस में सिमिलर नहीं है, इस केस में सिमिलर था। अगर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल द थर्ड वन इसकी बात करें तो उस केस में तीनों जो लेंथ्स हैं पैरामीटर्स में, तीनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ ऑफ फॉर श्योर नॉट इक्वल टू सी, जबकि एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। अगेन फिर इसमें चार टाइप्स की हैं, एक सिंपल ऑर्थोरोम्बिक है, एक बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है एंड फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है। Simple orthorhombic is given by this diagram. A, B and C all are different. Angles alpha, beta 90, gamma 90 डिग्री है। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो इसी स्ट्रक्चर में अगर एक सेंटर्ड पे एटम मौजूद है तो वो बॉडी सेंटर्ड आपके पास ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर सिर्फ इन फेसेस पे यानी अपर फेस और लोअर फेस पे है तो ये ओके बेस सेंटर्ड जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बनेगी। यस इसी तरह जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड के केस में सिमिलरली जो हमने इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखा था उसी तरह हर फेस पे एक एक्स्ट्रा आइटम मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फेस पे बिल्कुल यह सेंटर में मौजूद है, बैक साइड के इस फेस को देखा जाए तो यहाँ पे मौजूद है, और अगर आप फ्रंट साइड के फेस को देखते हो तो यहाँ पे एक, इसी तरह से अपर और लोअर के केस में भी एक एक सेंटर में एक्स्ट्रा आइटम या लेटेस्ट पॉइंट मौजूद है। और नंबर 4 इज रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में ए, बी एंड सी आर इक्वल, अल्फा बीटा गैमा एंगल इक्वल तो होंगे, एंगल इक्वल होंगे मगर वो 90 डिग्री नहीं है। Alpha, beta and gamma all angle are equal to each other but they are 90 degree and this gamma angle is less than 120 degree. This gamma angle is less than 120 degree. Here is the structure shown. यहाँ ये जो स्ट्रक्चर शो किया गया ये इसका रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस तरह अगर हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज़ हियर, जिसमें ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं जबकि सी इनसे मुख्तलिफ है। और अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा एंगल जो है वो 90 है, लेकिन हमारे पास जो गैमा एंगल है वो 120 का है। आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हर एंगल जो है वो, यहाँ का एंगल 120 है और ये सी है, लेट्स से ये बी हो, और इसी तरह अगर यहाँ ए हो तो वो चीज़ें, एक तो ए और बी सी, ए बी आपस में इक्वल है जबकि सी इनसे मुख्तलिफ है। ओके, ट्राइक्लिनिक सॉरी मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर नंबर 6, ए बी एंड सी ऑल not equal to each other. Alpha and gamma are 90 degree but beta is not 90 degree. इसमें फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिंपल मोनोक्लिनिक है और बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक है। एंड द लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक के केस में ऑल द पैरामीटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। A is not equal to B, is not equal to C, and alpha, beta, gamma all angles are
different from each other. This was about the fundamental types of crystals, and next we will talk about these lattice sides indices की बात करेंगे. Thank you.